Hallelujah, 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 ہم یہ سجدہ کرتے ہیں اور اسے مبارک ہیں. Hallelujah, 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 hallelujah. خداوند آپ کے ساتھ ہو. انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو. اس کا 3 باب 13 آیت سے لے کر 17 آیت تک. ایک دن یسوع نے نیکودیمس سے کہا, کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا, یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے. اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا, اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں. تشریف رکھیں. اسی خداوند میں میرے عزیزو, آج ہم سب پاک صلیب کی سرفرازی کی عید مناتے ہیں. یہ عید ابتدائی کلیسیا سے ہی منائی جا رہی ہے. 3 صدی سے ہی اس کا آغاز ہو چکا, جب مقدسہ ہیلن نے کوہ کلوری کی طرف سفر کیا اور پاک صلیب کی ڈسکوری ہوئی, تو اس دن سے اس کی تعظیم اور یہ سرفرازی کی عید منائی جانے لگی. اور اس کے بعد باقی کلیسیاؤں میں بھی. تو جو یسوع کی پاک صلیب اوریجنل تھی وہ ملی تھی, 3 ملی تھی. تو اب تینوں میں فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی یسوع کی صلیب ہے. تو اس وقت کے لحاظ سے بھی اور بعد کی سٹڈی سے بھی پتہ چلا کہ کون سی یسوع کی صلیب ہے. باقی صلیبیں بھی تھی اور یسوع کی صلیب بھی تھی. آپ کو پتہ ہے 2 ڈاکو بھی یسوع کے ساتھ مصلوب کیے گئے تھے. تو 3 صلیبیں ملی. تو دیکھنے کے لیے کہ آیا یسوع کی صلیب کون سی ہے, تو جو ایک عورت بیمار تھی اس نے اسے چھوا تو اس نے شفا پائی. اس سے پتہ چل گیا کہ یسوع کی صلیب کون سی ہے, جو نجات بخشتی ہے, جو زندگی بخشتی ہے, جو شفا بخشتی ہے. پاک کلام میں ہم بارہا بار سنتے ہیں, سال کے دوران میں بھی سنتے ہیں, اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. میرے اور آپ کے لیے وہ اس نے فدیہ دیا, خون دیا, مصلوب ہوا. تو یہ پاک صلیب کی سرفرازی کی عید جو ہے اصل میں میری اور آپ کی سرفرازی کی عید ہے. یہ فتح اور اپنی زندگی کی ضمانت کی عید ہے, فتح کی ہے. جیسا کہ مقدس یوحنا کے انجیل 12ویں باب کی 32ویں آیت میں یوں مرسوم ہے, اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا, آج بھی پہلی انجیل مقدس میں ہم نے سنا, جب اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں. پاک صلیب کی سرفرازی میں سرفراز ہونے کے لیے ہمیں مسیحا مصلوب کو دیکھنا, تکنا اور چکھنا ہوگا, جیسا کہ مزمور 32 میں اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھو اور چکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے. صلیب ہمیں موت پر فتح, دکھوں کے بعد خوشی اور باپ کی تابعداری کا درس دیتی ہے.
पाक सलीब पर ध्यान और ज्ञान करने से कुव्वत, ताकत, हिम्मत और जज्बा मिलता है कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद की राहों में और ताबेदारी और फर्माबरदारी में गुजारूं। पाक सलीब की ताजीम से सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का दर्स मिलता है। खुदा करे कि मेरी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाली और मेरा किरदार दूसरों के लिए खुदा की शनाख्त बने। हमें बेदार होना है और इरादा कर लें कि हमारी जिंदगी का मरकज़ व महवर सिर्फ खुदा और लोगों की खिदमत और उनसे मोहब्बत है। पाक सलीब हमें आगाह करती है कि हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जो मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ है। इसमें मेरी और आपकी सरफराजी है। जब हम सरफराजी सलीब को देखते हैं तो हम भी बुलंद किए जाते हैं। जैसा आज की इंजील मुकद्दस में हमने सुना कि इब्ने इंसान ऊपर उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से आया है वही ऊपर उठाया जाएगा, और जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने पास खींच लूंगा। सलीब की अजमत है, जलाली जिंदगी है, और ये सलीब का रास्ता जो है निजात का रास्ता है, फतह का, शिफा का, जिंदगी का तो है ही। ये निजात का रास्ता है। ये रास्ता हमें हमारी सिम्मत का तयन करता है, ऊपर उठाया जाना है जी। मसीह खुदावंद कहां पर उठाए गए? मरने और जी उठने के बाद कहां पर उठाए गए? ठीक है, उसकी सलीब के दो हिस्से हैं, दो लकड़ियां हैं। अमूदी जो है वो किस तरफ इशारा करती है? जो दूसरी तरफ की है, जुजवी है, उसकी किस तरफ इशारा करती है? जो एक खुदा की तरफ इशारा करती है और दूसरी लोगों की तरफ। खुदा से प्यार, लोगों से प्यार। तो इसे सलीब का निशान, इस पर निगाह करने से हमें बहुत सबक मिलता है। दलेरी मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, जज्बा मिलता है, निजात मिलती है, फतह मिलती है, शिफा मिलती है। ये अब्दी जिंदगी का रास्ता है। तो इस पर निगाह करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। सलीब की अजमत और सरफराजी क्या है? यीशु की सलीब, जिस सलीब पर यीशु की शबीह नहीं, वो मेरा और आपका निशान नहीं। लोगों को इतराज होता है कि आज भी कैथलिक वालों ने यीशु को सलीब पर लटकाया हुआ है, हमने नहीं। जो इस पर ईमान नहीं रखता, आज उन्होंने लटकाया हुआ है। जो उसके खिलाफ है वो यीशु को सलीब पर खींचते हैं। जो उसको फॉलो नहीं करते, उसकी पैरवी नहीं करते, वो यीशु को सलीब पर खींचते हैं। यीशु मेरे और आपके लिए खींचा गया है, सलीब पर लटकाया गया है, उसने मार खाई। रवायत के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, जिस सलीब पर यीशु की शबीह नहीं, वो मेरा और आपका निशान नहीं है। अभी खाली सलीब है जहां पर शबीह नहीं है। वो किसकी सलीब हो सकती है? किसी की भी हो सकती है, हमें क्या पता, किसी डाकू की भी हो सकती है। या ईरान में लोग सलीब पर लटकाते थे, रोमी हुकूमत सजा देने के लिए लोगों को सलीब देते थे, जो बागी थे उनको सलीब दी जाती थी। हमें क्या पता कि किसकी है? तो यीशु की सलीब की शनाख्त हमें होनी चाहिए। यीशु की सलीब की शनाख्त क्या है? तो उस पर यीशु की शबीह हो, जैसे आपके सामने बड़ी सारी क्रॉस है, सलीब है, यीशु की शबीह हो, और ऊपर लिखा हो यहूदियों का बादशाह। खाली सलीब कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिस सलीब पर यीशु है, ये इस बात का इकरार है कि यीशु मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के लिए मसलूब हुआ। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसने फिदिया दिया है, खून दिया है। यही फर्क है। वरना बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग सलीब को कुछ तो मानते हैं, कुछ नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे भी हैं, 2 अरब लोग ऐसे भी हैं जो ये सिर्फ मानते हैं कि मसीह खुदावंद कुंवारी से पैदा हुआ, बगैर बाप से पैदा हुआ,
उसकी तालीम से भी मुतासर हैं, मौजे करने से भी मुतासर हैं, जिंदा करने से भी मुतासर हैं। वो ये भी मानते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठाए गए, वो ये भी मानते हैं कि अब तक आसमान पर हैं, ये भी मानते हैं कि वो दोबारा आएंगे, लेकिन इस बात पर ईमान नहीं रखते कि उसको सलीब दिया गया। मुझ में, हमारे और उनके ईमान में यही फर्क है। यीशु ने मरने से पहले 3 बार पेशन गोई की कि इब्ने इंसान मसलूब किया जाएगा, अजियत रहेगा, गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और अफसोस उन लोगों पर भी जो है मसीह बज़ाहिर, लेकिन मसीहा मसलूब पर ईमान नहीं रखते, उसकी सलीब के निशान से डरते हैं। और यह ऐसा निशान है जिससे शैतान डरता है। हर बीमारी भाग जाती है। कोई बीमार है, हाँ जी, उसे आप सलीब का निशान बनाते हैं। हर इबादत के शुरू में सलीब का निशान बनाते हैं, हाँ जी, बनाते हैं कि नहीं? सफर करना हो, काम शुरू करना हो, हम सलीब का निशान बनाते हैं। हम अपने आप को मसा करते हैं, अपने आप को मखसूस करते हैं, अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करते हैं, जो ये कहता है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। ये उसका पैगाम है। आप देखें, सामने उधर भी स्टैचू है, वो मुकद्दस ट्रीजा का स्टैचू है, इधर भी स्टैचू है, मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर का स्टैचू है। उन्होंने सलीब पकड़ी हुई है, सलीब का पैगाम है। और सलीब का पैगाम का मतलब है कि यीशु का पैगाम है। सलीब के बगैर हम कुछ नहीं। हम, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, हम उस मसीहा मसलूब की मुनादी करते हैं, सलीब का बयान करने से घबराते नहीं। लेकिन हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो सलीब का निशान करने से भी कतराते हैं, सलीब का निशान करने से मना करते हैं, सलीब का निशान बनाने से जैसे शैतान डरता है, शायद उन्हें भी डर लगता हो। तो लिखा है कि उसकी अजमत क्या है, पाक सलीब है, अगर जिस पर शबी नहीं, वो सूली, वो बल्ले या कुछ भी हो सकता है। क्रॉस, हाँ, ये भी पता होना चाहिए, क्रॉस सिर्फ जमा का निशान, ठीक है, सिर्फ खाली नहीं, वो खाली हो सकता है। मसलूब, क्रूसिफिक्शन सलीब वो है जिस पर शबी होती है यीशु की। तो हमारा ईमान मसीहा मसलूब पर है, खाली सलीब पर नहीं, खाली सलीब पर नहीं, ठीक है। तो जिस पर शबी नहीं, वो महज क्रॉस है, धार है, काट है, बल्ली है, सूली है, पाक सलीब नहीं। लतूरी तौर पर और रिवायत के मुताबिक पाक सलीब पर यीशु की शबी होना लाजमी है। हर एक सलीब ना सरफराज होती है और ना सरफराजी का निशान है। हर एक सलीब सिर्फ उस सलीब की सरफराजी है और सरफराजी देती है, उसकी सरफराजी है जिस पर यीशु मसलूब हुआ, जिसकी निस्बत यीशु से है, उसकी शबी है, जिसकी निस्बत यीशु से है, यीशु से मंसूब है। ये भी जब क्रॉस हम इधर लगाते हैं तो वैसे नहीं लटका देते या अपने गले में या कहीं भी, वो मसा करते हैं, मखसूस भी करते हैं, ठीक है। जो मखसूस है, मंसूब है, वो सरफराजी का निशान है। ना सरफराजी का निशान है यीशु ने उठाई हो, यीशु के लिए उठाई हो, जो सलीब यीशु की खातर, यीशु के लिए, यीशु में और उठाई हो, मिली हो और उठाई हो, वो सरफराजी, अजमत, इज्जत, हशमत और जलाल बख्शती है। हर एक सलीब नहीं, जिसकी निस्बत यीशु से है, जो यीशु से मंसूब है, वो सब कुछ इज्जत बख्शती है, अजमत बख्शती है, हशमत बख्शती है, इज्जत बख्शती है, निजात बख्शती है, जिंदगी बख्शती है, शिफा बख्शती है, निजात बख्शती है, फतह बख्शती है। और जिसकी निस्बत यीशु से नहीं, वो कुछ भी नहीं।
सलीब की अजमत मेरे जिंदा होने की अजमत है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। हाँ जी, हम सलीब का निशान बनाते हैं। जरा गौर करें, आपने उन लोगों को बताना है जो सलीब का निशान नहीं बनाते, जो इसको अहमियत नहीं देते। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीहा मसलूब के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। गलातियों के नाम खत 2 बाब की 19वीं और 20वीं आयत। फिर एक और मकाम में मुदर्ज है कि खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फक्र करूं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। गलातियों के नाम खत 6 बाब की 14वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं, सलीब खुदा की मोहब्बत की इंतहा है। खुदावंद यीशु ने इंसानी सलीब के लिए, इंसानी निजात के लिए सलीब उठाई और दुख सहे। खुदावंद का ये अमल हमें दर्श देता है कि दूसरों के लिए जीना ही सलीब की रूहानियत है। पाक सलीब और मसीहा मसलूब की मुनादी। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खुतूत में अक्सर कलीसियाओं को मसीह मसलूब के बारे में यूं रकम तराज है। हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं ये यहूदियों के नजदीक ठोकर का बायस और गैर कौमों के नजदीक हमाकत है। लेकिन हम बुलाए हुए के नजदीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह की कुदरत और हिकमत है। पहला कुरिन्थियों 1 बाब की 23वीं और 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं। यहां पर भी आप रोज जो प्रैक्टिस करते हैं सलीब का निशान बनाते हैं, और जो नहीं बनाते उनसे मुआवजा कर सकते हैं वो कौन है और आप कौन है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर का बायस है, जो ये कहते हैं कि आप सलीब का निशान क्यों बनाते हो। ठीक है, उस सलीब की निशान को समझ ही नहीं सके, सलीबी रास्ते को नहीं समझ सके, निजात के रास्ते को नहीं समझ पाए। तो जो ये लोग ख्याल करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का बायस और गैर कौमों के लिए नजदीक हमाकत है। हाँ जी, जब आप सलीब का निशान बनाते हैं तो कई लोग क्यों बनाते हो, ये हमाकत है, ये बुत परस्ती है। कैसी बुत परस्ती है, किस किस्म की है ये? ऐसे बातें खुदा से दूर करती है। शैतान का काम है। शैतान खुद सलीब से डरता है क्योंकि यीशु ने सलीब पर मौत पर शैतान पर फतह पाई है, मात दी है सलीब पर चढ़कर भी। और सलीब क्या है? दुख है, मुसीबतें, परेशानियां हैं जो मुझे और आपको आज भी मिलती हैं। बीमारी है, दुख है, मायूसी है। हमें उस मायूसी में, बीमारी में भी यीशु का ऐलान करना है, यीशु का इकरार करना है, उसका इतराफ करना है कि वो मेरा मसीहा है। मुझे सलीब से घबराना नहीं, डरना नहीं। वो तो हिम्मत देती है, जो यीशु की पैरवी करते हैं उन्हें हिम्मत देती है कि मुझसे पहले मेरे आगे यीशु है, जो ये कहता है कि तुमसे पहले मुझे उन्होंने सिखाया, मुझे रद्द किया। उनसे घबराना नहीं, उनसे डरना नहीं। तो हमें घबराना नहीं, सलीब से डरना नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं। अगर चर्च पर सलीब का निशान बना हो, लोग डरते हैं, देखने से डरते हैं। कौन डरते हैं? जो सलीब पर ईमान नहीं रखते, जो बचाए नहीं जाएंगे। दूसरे लफ्जों में, क्योंकि यीशु ने सबको बचाने के लिए, आज के इंजील मुकद्दस में हमने सुना कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो जिंदगी नहीं पाना चाहते। ये निशान मुझे यीशु की तरफ लेकर जाता है। इस निशान से मुझे रूहानियत मिलती है, सलीब की रूहानियत, यीशु के प्यार की रूहानियत मिलती है कि किसी के लिए अपनी जान देना, इससे ज्यादा कोई नहीं प्यार करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। ये प्यार की निशानी है, सबक है मेरे और आपके लिए। तो हम जो हर दुआ से पहले उठते बैठते चलते फिरते सलीब का निशान बनाते हैं। हाँ जी, तस्निया शरा 6 बाब है 4 आयत में पढ़े जाकर
निशानी के तौर पर, तो अपने माथे पर बांध, अपने दिल में बिठा, अपने बाजुओं पर बांध। निशान है, निशान। उनका निशान क्या था, हमारा निशान क्या है? सलीब का निशान, जिस पर यस्सु की छवि है। तो वो फरमाता है, अगर तुम में, पिछले एक बार हमने बड़े वजाहत से सुना, अगर कोई तुम में से मेरा शागिर्द बनना चाहता है, खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। मेरे पीछे अपनी सलीब उठाए, हम उसकी सलीब को पेशे निगाह रखते हैं और अपनी सलीब उसके पीछे अपने आप को लेकर चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, शागिर्द बनते हैं। बेशुमार तरीकों से हम इसकी अहमियत को जान सकते हैं। सुना इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है, तू उसे पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार कर। मुकद्दसीन इस बात का प्रचार करते हैं कि अगर सलीब नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरी और आपकी जिंदगी में भी दुख, हम बहुत सारी सलीबें हैं, ये सलीब पर, इस सलीब पर, हाँ जी, सर से पांव तक, हाँ जी, इस सलीब पर मेरी और आपकी जिंदगी में, इस सलीब पर बहुत सारे दुख परेशानियां आती हैं, मायूसियां आती हैं, डर है, इस पर जुल्म भी होता है। ये खुदा की हैकल भी है जी, सलीब का निशान भी है। तो इसको मुकम्मल तौर पर यीशु के पीछे लेकर चलना है, आधा नहीं, थोड़ा नहीं, नहीं, मुकम्मल। जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, खुद इनकारी करे और मेरे पीछे हो ले। हम अक्सर गीत गाते हैं, रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं ढोल। गाते जरूर है, समझते नहीं। अब ज्यादा गाते भी वो हैं जो क्रॉस पर, मसीहा मतलूब पर ईमान ही नहीं रखते, सलीब का निशान बनाते ही नहीं। गाते तो हम सब ही हैं, लेकिन मैंने देखा सबसे ज्यादा वही गाते हैं। और गाते का बस ज्यादातर जब फौतगी हो जाए, तीसरा दसवां हो, रब अयाली गाते हैं लेकिन समझते नहीं। बड़ा अच्छा पैगाम है, तसल्ली का पैगाम है, उसमें निजात का पैगाम है, फतह का पैगाम है। उसमें आता है, तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। तेरी सोटी, खुदा की सोटी कौन सी है? तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। सोटी कौन सी और लाठी कौन सी है? क्यों भाई, कौन सी हो सकती है? यीशु बादशाह जिसके सर पर ताज है, कई तस्वीरों में आप देखते हैं कि सलीब का निशान उसके हाथ में है। कई तस्वीरों में एक हाथ में असा है, लाठी है, और एक हाथ में सोटी है। इसका क्या मतलब है? तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। पहले देखते हैं सोटी का काम क्या है। लीड करना। बड़े बड़े अफसर्स के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है सोटी, लीड करने का निशान है। जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े लीड करने वाले, उनके हाथ में सोटी होती है, लीड करते हैं। यीशु के हाथ, खुदा के हाथ में वो लीड करता है। ठीक है, मुख्तसर में बयान करूंगा, फिर कभी इस पर बात करेंगे। और लाठी, हाथ में लाठी भी है, सोटी भी है। सोटी का काम क्या है और लाठी का काम है दफा करना, अपनी भेड़ों की रखवाली करना। अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा, छोटी लीड करने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए, लीड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लाठी दफा करने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए। तो वो छोटी और लाठी जब उसको इकट्ठा किया जाता है तो वो सलीब का निशान बनता है। और ये सलीब हमें बचाती है, सेव करती है, निजात देती है, निजात का रास्ता है। जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, जो मेरा शागिर्द बनना चाहता है खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और जब हम इस सलीब को उसके पीछे लेकर चलते हैं तो मुझे, जब अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, पीछे चलते हैं, तो हमें कंट्रोल भी करता है, हमें हमारा दफा भी करता है।
सलीब हमारा दफा करती है। दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, सुख हो, हम सलीब का निशान बनाते हैं। बीमार हो, हम सलीब के साथ मसा करते हैं। इबादत का आगाज हो, हम सलीब का निशान बनाते हैं। आखिरी बरकत हो, हम सलीब के निशान से बरकत देते हैं। हमें इसकी रूहानियत को, अहमियत को जानना है कि पाक सलीब हमसे क्या तकाजा करती है, ये ईद हमसे क्या तकाजा करती है। पाक सलीब की फजीलत यानी बेगर्ज मोहब्बत, कुर्बानी और निजात का प्रचार अपने कौल फेल से करें। मसीहा मसलूब की सलीब की अलाहियात और रूहानियत पर ध्यान और ज्ञान करें। अपने दिलो दिमाग को उस पर मुर्तकिज करें, उस पर मरकूज करें। मसीह घरानों में सलीब मुनकशफ और नुमाया हो। हम सलीब पर यस्सु से गुफ्तगू करें और उसकी सुने। यस्सु की तरह सरापा मोहब्बत बने। आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, यस्सु की सलीब के सामने खड़े हों, बैठें, घुटने हों, दुआ करें, गुफ्तगू करें। जो मेरे और आपके लिए दुख उठाता है, आपका दुख खत्म हो जाएंगे। बीमार हैं, दुआ करें, बीमारी चली जाएगी। परेशान है, अपना आप उसके सामने पेश करें, सब दूर हो जाएगा। मसीह की सलीब के बुलंद किए जाने की वजह से सलीब फतह, मुआफी, जिंदगी, बहाली, अमन और उम्मीद का निशान बन गई है। जो मौत का निशान था, जो जिल्लत का निशान था, जो कमजोरी का निशान था, वो फतह का निशान बन गई है, बहाली का निशान बन गई है, जिंदगी का निशान बन गई है। इसलिए हमारा ईमान तब ही मुकम्मल होता है, जैसा आज हमने अंजील मुकद्दस में सुना है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्श दिया क्या? कि मेरे और आपके लिए मौत के घाट उतार दिया गया है। उस पर मेरे और आपके गुनाह लदे हुए थे, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हलाक हुआ है, कत्ल किया गया है, खून बहाया गया है, कांटों का ताज पहनाया गया है, लान तान किया गया है। लेकिन यस्सु में वही जिंदगी, वही सलीब, पाक सलीब मेरे लिए फतह का निशान बन गई है, जिंदगी का निशान बन गई है। ये रास्ता है जिसमें से गुजरकर हम निजात में दाखिल हो सकते हैं, जिसमें से गुजरकर हम आसमान में जा सकते हैं। आसमान से कोई नहीं उतरा। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के अंजील 3 बाब में कोई भी आसमान से नहीं उतरा, फक्त उसके जो आसमान से कौन? यीशु उतरा है? कोई भी आसमान से नहीं उतरा सिवाय उसके जो आसमान पर चढ़ा है। कौन आसमान पर चढ़ा है? जिस हर आंख ने उसे देखा है। मैं और आप इकरार करते हैं वो आसमान पर है। आज सबसे ज्यादा दुनिया जो है वो इस बात का इकरार करती है कि वो आसमान पर है, जिंदा उठाया गया है। तो जो मेन बात है बहुत सारे वो स्किप कर जाते हैं, वो क्या है? यीशु की सलीबी मौत। आज की दूसरी तिलावत में इस बात पर जोर दिया गया है कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। सलीबी मौत जो दुखों की अलामत है, लेकिन वो जिंदगी और सुकून की अलामत बन गई है। जब हम उसको देखते हैं हमें तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है, अमन मिलता है, बहाली मिलती है, जिंदगी मिलती है, निजात मिलती है, शिफा मिलती है। हम उसके घराने के लोग बन जाते हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें बन जाती हैं, जिसको उसने मरहम किया है, टूटी को बांधा है, खो गई है उसे वापस लाया है। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल, ये उसकी पाक सलीब ही है जो मुझे और आपको संभालती है। उसकी पाक सलीब ही है जो मुझे और आपको कंट्रोल करती है, बशर्ते कि हम अपने आप को उसके सरेंडर करें, स्पुर्द करें, स्पुर्द करें।
दो तीन ही रास्ते होते हैं दुनिया में, या तो फाइट करें या फ्लाइट करें, है जी, या भाग जाएं तो या लड़ाई करें। तीसरा रास्ता हमें चुनना है, वो कौन सा है? हमें अपने आप को सरेंडर करना है, स्पुर्द करना है। तो हम भागेंगे नहीं, बल्कि हर एक बुराई का, बदी का, शैतान का मुकाबला करेंगे उसकी कुव्वत से, जिसको हमने अपने आप को स्पुर्द किया है। तो हमारा इबादत करना भी अपने आप को स्पुर्द करना है। जब मैं सजदा करता हूं खुदा को, तो अपने आप स्पुर्द करता हूं। वो सजदा करने आए, उसने सजदा किया, यानी अपने आप को स्पुर्द करना है। आप सिर्फ वो समझते हैं कि सजदा करना सर झुकाना ही नहीं है, इसमें बहुत सारा है, बहुत सारी बातें हैं। ये परस्तश है, ये इबादत है, ये जेस्चर है कबूल करने का, अपने आप को उसके स्पुर्द करने का, इकरार करने का कि तू मेरा मसीहा है, तू मेरा निजात दहिंदा है, और अपने आप को उसके स्पुर्द करने का, इकरार करना और स्पुर्द करना है। तो जब हम अपने आप को खुदा के स्पुर्द करेंगे, तो फिर पंजाबी च कहते त्याडी हवाल भी नहीं कोई देखेगा जी, क्योंकि मेरी जगह पर वो खड़ा होता है, मेरा दुख वो संभालता है, वो सहता है, मेरे गुनाह को वो मुआफ करता है। तो आज की पहली तिलावत में बड़ी खूबसूरती से ये बात बयान की गई कि ऊंचे पर बियाबान, यीशु ने भी इसका हवाला दिया है। जैसे मूसा ने बियाबान पर चढ़ाया, ठीक है, बियाबान पर चढ़ाया, तो किसको? सांप को। क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि लोगों ने खुदा और मूसा के खिलाफ गुनाह किया, बुड़बड़ाए कि तो हमें मरने के लिए बियाबान में ले आया। तो खुदा के हुक्म से उसने पीतल का सांप बनाया, बल्ले पर चढ़ाया, और लिखा है, खुदा ने कहा कि जो कोई उस पर निगाह करेगा वो बच जाएगा। और यीशु ने आज भी ये हवाला दिया है कि जो कोई उस पर निगाह करेगा, इब्ने इंसान पर, मसीहा मसलूब पर जो निगाह करेगा वो बच जाएगा। क्या हम यीशु पर निगाह करते हैं, यीशु मसीहा मसलूब पर निगाह करते हैं, या कि उससे भागते हैं? जैसे दूसरी कौमें, दूसरे लोग सलीब के निशान से भागते हैं, उसके खिलाफ कुफर बकते हैं। जब आप सलीब का निशान बनाते हैं तो आपकी निस्बत नाहक बातें कहते हैं। क्या उनके नजदीक यीशु की सलीब क्या मायने रखती है और आपके नजदीक क्या मायने रखती है? हमें सोचना है, इन बातों पर गौर करना है कि आया मैं खुदा की, यीशु की सलीब के पीछे हूं या कि उससे दूर हूं। हम देखते हैं कि यीशु के, खुदा के हुक्म से जो भी उस पर निगाह करता था वो बच जाता था। लेकिन ये बात मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, मैं लेकिन फिर भी बताऊंगा कि लोग जो हैं, जितना खुदा ने बताया है उसको मानना चाहिए। जितना खुदा ने हुक्म दिया है हमें उतना ही मानना चाहिए। उसी में जिंदगी है, शिफा है, खुदा को मानना, ठीक है। जब हम, जो खुदा ने उसे मूसा को हुक्म दिया कि पीतल का सांप बना, तो लोगों ने क्या किया? क्यों जी? लोगों ने क्या किया? लोगों ने उस सांप की पूजा शुरू कर दी, जो कि गुनाह है, जो कि बुत परस्ती है। खुदा बुत परस्ती से मना करता है। तो ये सलीब का निशान है, फतह का निशान है, जिंदगी का निशान है, सलीब का रास्ता है। ना तो ये कोई लकड़ी या सोना चांदी जो है मेरे लिए कुछ मायने रखता है, ना आपके लिए, बल्कि इसकी कदर इससे बढ़ गई है कि यीशु की शबी है और ऊपर लिखा है कि यहूदियों का बादशाह, ठीक है। इसकी अहमियत को जानना है, इसकी रूहानियत को जानना है, ठीक है। ये नहीं कि ये मेरा खुदा है, ये जिसकी तरफ इशारा करती है उसको समझना है। ये सलीब यीशु मसलूब की तरफ इशारा करती है। कई लोग बेहुरमती करते हैं, चर्च पर सलीब लगी होगी, खौफ आता है, डर आता है। कई लोग किसी की दुश्मनी हमसे निकालने के लिए
सड़कों पर सलीब का निशान बनाते हैं, बेहुरमती करते हैं, उनके लिए सलीब का निशान क्या है, हलाक होने वालों के लिए क्या है और निजात पाने वालों के लिए क्या है। तो उसको जब बुत परस्ती बढ़ गई, उन्होंने पूजा शुरू कर दी, तो खुदा के बंदा हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया हम देखते हैं। दूसरा मलूक 18वें बाब में इस हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया, उसने ऊंची जगहों को ढा दिया और स्तूलों को तोड़ा और खंभों को काटा और पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर किया। क्यों किया? क्योंकि लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी। तो निजात और शिफा किसमें था कि यीशु खुदा के हुक्म को पूरा करने के जो देखेगा। तो ये प्रीफिगर था, तशबीह थी इशारा का यीशु की सलीब की तरफ, यीशु की सलीब की तरफ। उसको जानना है कि वो पेशनिगाह है, मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ाया गया, मेरे और आपके गुनाह उस पर लदे हुए हैं। तो उसको चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों उसके आगे खुशबुइयां जलाते थे और उसका नाम नहतान रखा गया और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा पर भरोसा किया। और यहूदा के सारे बादशाहों में उसके बाद वैसा कोई ना हुआ जो उनमें से जो उससे पहले थे, और वो खुदावंद से लिपटा रहा, खुदावंद से लिपटा रहा। हमने इस पैगाम को सुनना है, इस पर अमल करना है, खुदा पर ईमान रखना है, खुदा को देखना है, इससे सीखना है। ये नहीं कि हम इसे बुत परस्ती बना लें, खुदा को छोड़कर इसकी पूजा शुरू कर दें। बताने का ये मतलब है कि हमें इस उलूहियत को, इलाहियात को समझना है, सलीब की सरफराजी को समझना है और सरफराज होना है। इसकी सरफराजी में हमारी सरफराजी है, इज्जत है, अशमत है, बढ़ोतरी है, अजमत है। तो खुदा का शुक्र अदा करे कि खुदा हमें पाक कलाम के मुताबिक अमल करने का फजल अता करे। हम अपनी सलीब उठाकर उस सलीब के, यीशु की सलीब के पीछे चले जो हमें सरफराजी बख्शी है मसीह खुदावंद के वसीला से। हम सब अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा